Okay, so very good morning all. Okay, Good morning, sir. yesterday lectures or day before yesterday we have already learned about different types of translator. After that we have seen about the syntax, semantics, and before that we have learned about the computer languages and all. Okay, so today we are going to see about the types of error. When we talk about the translator, we have learned about this compiler, interpreter, as well as we have learned about the assembler also. If we are talking about the compiler, interpreter and assembler, what the job role of translator is, translator क्या करता है? Translator is going to translate the high level language program into a low level language program, sorry, into a machine level language program. That means आपका high level language क्या करता है? Just a sec, there is a mistake in the types of computer language, that low level language is not here. I will make a change, just a sec. It's a middle level language actually. Okay. So see, your assembly language is a middle level language and your machine level language is called as a low level language. ठीक है? When we are talk about the translator, जब हम लोगों ने translator पढ़ा था, translator का हम लोगों ने देखा था, translator is a program which convert a high level language program into a machine level language program, or we can say a low level language program. Interpreter is also do the same. It converts a high level language program into a machine level language program. But the difference is that कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम कंपाइल करता है और एट लास्ट इट विल गिव्स अ लिस्ट ऑफ एरर. कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है, कंपाइलर क्या करता है, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम कंपाइल करता है और लास्ट में कंपाइलेशन होने के बाद वो आपको क्या देता है, लिस्ट ऑफ एरर देता है कि आपके प्रोग्राम में कौन से लाइन पे कौन सा एरर है. ठीक है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू जो भी आपके एरर्स है वो आप उसको क्या करोगे, रिकवर करोगे. वॉट एवर एरर्स encountered in your program, you are going to recover that program. You can recover that error. You are going to remove that error from your program. After that you are able to execute the program. पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रोग्राम है उसको आप कंपाइल करोगे. कंपाइल करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ एरर मिलेगी. फिर लिस्ट ऑफ एरर जो है वो एरर को आप निकालोगे. That after you are going to execute the program. उसके बाद अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे. वैसे इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर विल इंटरप्रेट द प्रोग्राम, विल कंपाइल द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. इंटरप्रेटर क्या करता है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. और इफ द एरर्स आर एनकाउंटर्ड, अगर वो पहले लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट लाइन ट्रांसलेशन इफ द एरर्स is encountered in that particular line, it will stop the compilation. वो क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा वहां पे. तब तक स्टॉप रहेगा आपका इंटरप्रेटर जब तक आप वो एरर को नहीं निकालोगे. आपने एरर रिकवर कर दिया तो फिर दूसरी लाइन को कंपाइल करेगा, फिर थर्ड लाइन को, फिर फोर्थ लाइन को, till the last point, till the ending or termination point of your program. तो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है. जब हम लोग कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो अभी हमने बोला कि whenever we are doing the compilation process or whenever we are going to do the translation or interpretation process, at that time आप इंटरप्रेटर यूज करो या फिर कंपाइलर यूज करो, दोनों के केस में क्या होता है कि कंपाइलेशन कंपाइल पूरा प्रोग्राम आपका कंपाइल करता है और एट लास्ट इट विल गिव अ लिस्ट ऑफ एरर्स. अभी अगर मैं एरर की बात करता हूं तो एरर क्या होते हैं, ठीक है, एरर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स कौन से हैं. ठीक है, basically error are classified into two types. There are two different types of error. First one is logical error and the next one is syntax error. Basically what it means, a logical error and a syntax error. Logical error और syntax error होते क्या है, ठीक है. Error are nothing but a mistake happen in the program at the time of execution. Error क्या होता है, ये मिस्टेक्स होती है. इट इज डन बाय द यूजर, जो यूजर की तरफ से हुई है, जो प्रोग्राम लिख रहा है उसने वो मिस्टेक की है, जिसको हम लोग एरर्स बोलते हैं. ठीक है, सो एरर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ लॉजिकल एरर एंड द सेकंड वन इज अ सिंटैक्स एरर. दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक लॉजिकल होता है तो दूसरा सिंटैक्स होता है. ठीक है,
लॉजिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल एरर एंड व्हाट डू मीन बाय सिंटैक्स एरर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंटैक्स, अगर मैं सिंटैक्स की बात करता हूं तो सिंटैक्स इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ मेथड और इट इज द फॉर्मेट टू राइट डाउन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द पर्टिकुलर वे। ठीक है, कोई चीज को, कोई स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाना चाहिए ये हमको सिंटैक्स बताता है। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट, how we are going to write down the instruction in the particular programming language, that means it is a syntax। syntax का मतलब होता है कोई चीज को, कोई स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको syntax बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2+3 करना है, द आंसर इज 5, यू कैन नॉट डन +2 3, ऐसा आप नहीं लिखोगे, प्लस पहले बाद में 2 3, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो सिंटैक्स है, ऑपरेटर हमेशा बीच में आता है, ऑपरेंड उसके आजू बाजू में आते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर्मेट, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको लिखनी है, कोई भी स्टेटमेंट आपको लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सिंटैक्स इसके डिफाइन है। उस सिंटैक्स में लिखोगे तो ही आपका प्रोग्राम राइट होगा। अगर आपने सिंटैक्स में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सी में हर एक स्टेटमेंट आपका सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, सी का हर लाइन एक्सेप्ट द लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, आपके सी के प्रोग्राम की हर एक लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। अगर आप वो सेमीकोलन देना ही भूल गए तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपका प्रोग्राम, योर प्रोग्राम विल शोज द एरर, आपका प्रोग्राम आपको एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेमीकोलन नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको इफ स्टेटमेंट लिखना है तो इफ का आई स्मॉल होना चाहिए, एफ स्मॉल होना चाहिए, तो आई एफ इफ होता है। अगर आपने आई कैपिटल कर दिया, एफ कैपिटल कर दिया और इफ लिखा तो इट विल गिव्स अ सिंटैक्स एरर, इट विल गिव्स अ कंपाइलेशन एरर। सो सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है कि आपने लिखने का तरीका अगर चेंज कर दिया, ठीक है, आपने अगर सिंटैक्स उसका प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, तो आपको आपका कंप्यूटर, आपका प्रोसेसर आपको एरर थ्रो करेगा, एरर बताएगा। फिर जब तक आप वो एरर नहीं निकालते तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। और हमेशा आपका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो है, इट विल ऑलवेज शोज द सिंटैक्स एरर। आप जब कोई प्रोग्राम को कंपाइल करते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लिसन वेरी केयरफुली, whenever we are compiling the program, whenever you are interpreting the program, at that time your processor will shows only a syntax error। आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो ही आपका कंपाइलर एरर बताएगा। इफ देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ एरर नोन एज लॉजिकल एरर, दो टाइप के एरर होते हैं और कंपाइलर सिर्फ एक ही एरर शो करता है, कौन सा? सिंटैक्स एरर शो करेगा। कंपाइलर नेवर शोज द लॉजिकल एरर। आपका जो कंपाइलर होता है वो कभी आपको लॉजिकल एरर नहीं बताएगा। अब ये लॉजिकल एरर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल एरर? लॉजिक यानी क्या होता है? लॉजिक इज नथिंग बट व्हाटएवर थिंग बाय द ह्यूमन ब्रेन। लॉजिक हम बोलते हैं ना, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो लॉजिक लगाना है ना, बोलते हैं हम लोग लॉजिक लगाना है। लॉजिक कौन लगाता है? लॉजिक की ह्यूमन बीइंग, एंड यूजर जो प्रोग्राम लिख रहा है वो बंदा लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, इट मींस दैट व्हाट, लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एरर आर दोज एरर which are unfortunately accidentally happened by the user or the end user। it means that what, लॉजिकल एरर क्या होते हैं? ये बाय मिस्टेक, यूजर के हाथ से कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, लॉजिक लगाते समय, बिकॉज लॉजिकल एरर नेवर शोन बाय द कंपाइलर एज वेल एज द इंटरप्रेटर। आपका जो कंपाइलर है, आपका जो कंप्यूटर है, आपको कभी लॉजिकल एरर नहीं बताता है। ये क्यों नहीं बताएगा लॉजिकल एरर? बिकॉज कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं है। कंप्यूटर के पास ब्रेन है क्या? नहीं है, ब्रेन हमारे पास है। लॉजिक किसने लगाया है? यूजर ने लगाया। लॉजिक हमने लगाया। प्रोग्राम किसने लिखा है? अपन ने लिखा है। तो आपने लॉजिक में क्या लिखा है ये आपको पता है, ठीक है। कंप्यूटर को लॉजिक समझ रहा है क्या? नहीं, कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। गॉट द पॉइंट? कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, कंप्यूटर आपकी लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्योंकि आप कंप्यूटर को बोलोगे कि नहीं ये ऑन करो तो कंप्यूटर आपको ऑन करके देगा। आप बोलोगे ऑफ करो तो वो आपको ऑफ करके देगा। आप बोलोगे कंप्यूटर को कि मुझे इवन नंबर फाइंड आउट करके दो तो आपको इवन नंबर फाइंड आउट करके देगा। आप बोलोगे ऑड नंबर फाइंड आउट करके दो, आपको ऑड नंबर फाइंड आउट करके देगा।
लेकिन आपको चाहिए प्राइम नंबर और आपको कंप्यूटर को बताया नहीं कि मुझे प्राइम नंबर चाहिए, तो कंप्यूटर को ड्रीम नहीं है, कंप्यूटर ड्रीम नहीं देख सकता, सपना देखता है कि हमारा प्रोसेसर नहीं देखेगा। हम लोग जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करते हैं उस तरीके से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है, तो हम लोग की जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने का काम हमारा कंप्यूटर करता है, हमारा प्रोसेसर करता है। और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय कोई सिंटैक्स एरर है, ठीक है, जो सिंटैक्स अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो उसका वो एरर बताएगा। लेकिन आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर कभी लॉजिकल एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल एरर कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आपने क्या लॉजिक लगाया है। लॉजिक आपने लगाया, काफी बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोग्राम पूरा सही होता है, हमारे जो एरर होते हैं वो जीरो होते हैं सॉरी, हमारे एरर्स जीरो होते हैं, लेकिन हमें जो आउटपुट आता है वो गलत आउटपुट मिलता है। फिर इस समय पे क्या करना है कि हमारे, आप बोलोगे सर मेरे एरर तो जीरो आ गए, मेरा प्रोग्राम तो पूरा सही है, लेकिन मुझे आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है? तो आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपने जो लॉजिक लगाया है वो कहीं आपने लॉजिक गलत किया है, आपने कहीं गलती की है लॉजिक लगाते समय। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपको कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, आपको कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के कोई एक्सप्रेशन को आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ठीक है, सॉल्व करते समय आपने प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो किए तो आपको आंसर सही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने प्लस की जगह माइनस किया है और माइनस की जगह प्लस किया है तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। सिंटैक्चुअली इट इज ट्रू, आपने प्लस का यूज करना माइनस का यूज करना ये आपके हाथ में है। ठीक है, लेकिन लॉजिक आपने लगाया हुआ है, लॉजिक अगर आपने सही लगाया हुआ है तो आपको सही आंसर मिलेगा। अगर आपका लॉजिक ही गलत है, भले आपका सिंटैक्चुअली पूरा सही है, सिंटैक्स आपने पूरे प्रॉपरली फॉलो किए हैं, ठीक है, लेकिन आपका लॉजिक ही गलत लिखा है, आपने किसी एलिमेंट को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल लॉजिकल एरर क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा 15 डिवाइड बाय 0, सो 15 डिवाइड बाय 0 यू कैन नॉट डिवाइड एनी वैल्यू बाय 0, कर सकते क्या? नहीं कर सकते, इट इज अ लॉजिकल एरर, बट दैट इज नॉट द एरर फॉर सिस्टम। सिस्टम के लिए एरर नहीं है, आपने 15 डिवाइड बाय 0 किया, दैट मींस इट इज नॉट द एरर, इट इज सिंटैक्चुअली ट्रू, आपने सही लिखा है। 15 डिवाइड बाय 0 सेमीकोलन से टर्मिनेट मार दिया, आपने सिंटैक्चुअली आपने बराबर सही लिखा हुआ है, बट लॉजिक आपका गलत हो गया क्योंकि आप कोई एलिमेंट को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो लॉजिक आपका गलत हो गया तो कंप्यूटर आपको लॉजिकली एरर नहीं बताएगा कि नहीं आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 0 क्यों किया, कंप्यूटर ऐसे एरर आपको बताएगा क्या? नहीं, कंप्यूटर नेवर टेल यू द लॉजिकल एरर, वो आपको लॉजिक में एरर होगा तो नहीं बताएगा, वो आपको सिंटैक्स में एरर होगा। हाँ, भले 15 डिवाइड बाय 0 और उसके बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो आपको बताएगा कि यू हैवंट अप्लाइड द सेमीकोलन, दैट मींस सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड, आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, आपका सिंटैक्चुअल एरर है ये आपको बताएगा। लेकिन भैया आपने लॉजिकल एरर किया है तो आपको लॉजिकल एरर वो शो नहीं करेगा। दैट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, लॉजिकल एरर होता है, सिंटैक्स एरर होता है। कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ो, आप C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, सी पढ़ो, ओरेकल पढ़ो, PHP पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज आप स्टडी करिएगा तो उसमें दो टाइप के एरर होते हैं, एक तो लॉजिकल होता है, एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स एरर हमेशा आपका ट्रांसलेटर बताता है, हमेशा आपका कंपाइलर सिंटैक्स एरर बताता है, लेकिन लॉजिकल एरर आपका कंपाइलर शो नहीं करता है। लॉजिकल एरर क्या होता है? द एरर विच इज डन conceptually, logically is happened by the ह्यूमन बीइंग। दैट मींस जो गलती हमारे तरफ से लॉजिक लगाते समय हुई है उसको हम लोग लॉजिकल एरर बोलते हैं। और सिंटैक्स एरर मतलब ये होता है कि कोई स्टेटमेंट, कोई इंस्ट्रक्शन का अगर हमने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है, उसको लिखने का तरीका हम लोगों ने फॉलो नहीं किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। गॉट द पॉइंट? शुड आई प्रोसीड? एनीवन? शुड आई प्रोसीड? अच्छा गाइस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि मैं बोलते जा रहा हूँ, यू आर नॉट लिसनिंग एनीथिंग। नो सर। Hello, getting or not? Or type your queries in the chat box also. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा आस्क नहीं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, समझेगा नहीं।
If you're getting or not, please tell me. Either you have to unmute yourself or type in the chat box. Are you getting or not? If you are getting, then we will proceed further. Yes, sir. Should I proceed or stop here? समझा है नहीं समझा है, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Samjhe. Everybody put in the chat box. सब लोग chat box में लिखेंगे आपको समझा है नहीं समझा. Hello. You got the point or not? Yes or no? Everybody has to unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, everybody got it. Okay. Not any. Okay. All right. Now the next point is now see. The next point is what is programming language and what are the different types of programming language. ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है what are the different types of computer language. अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो कौन से टाइप की लैंग्वेजेस होती है, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोगों को आती है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा मिडल लेवल लैंग्वेज और वी कैन से असेंबली लेवल लैंग्वेज. ठीक है, जो कोडेड फॉर्मेट में होती है जिसमें मिनोमिक्स हम लोग यूज करते हैं. जो कोडेड फॉर्मेट में लैंग्वेज होती है उसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, फिर मिडल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. और लास्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज. टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज नोन टू द मशीन ओनली. इसी को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें सिर्फ जीरोस और वन के कॉम्बिनेशन होते हैं. Now, if we are talking about a programming language, अगर मैं programming language की बात करता हूँ, तो there are two types of programming language. So basically, what it means a programming language, ठीक है? Programming language का अगर मैं meaning देखता हूँ तो होता क्या है, ठीक है? Already we have know about the language. Language यानी क्या होता है? Language is nothing but it's a media of communication. Language क्या होता है? एक मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं? कम्युनिकेशन करने वाले हैं. ठीक है, सो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इंग्लिश, मराठी, हिंदी, व्हाटएवर है, जो भी लैंग्वेज हम लोग को आते हैं, दीज आर लैंग्वेजेस आर द मीडियम फॉर कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज द मेथड फॉर और इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट्स अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, जो हम लोग खुद के बीच में कोई थॉट्स को शेयर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं. So programming language, इसके पहले before that we have already learned about a program also. Program क्या होते हैं? Program is nothing but it is a set of instruction. Program का definition मैंने कल ही बताया आप लोगों को. Program क्या होता है? Program is the set of instruction. एक प्रोग्राम अगर है तो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है. और वो प्रोग्राम किस लिए बनाया जाता है? इफ यू वांट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई आपको टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका मैं प्रोग्राम लिखूंगा और प्रोग्राम के अंदर में स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन लिखूंगा. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, we have a different kinds of languages. We have learned C, we have to learn C++, Java है, PHP है, J2ME है, J2SE है, there are n, Fortran है, Foxtrot है. ठीक है, आपका MongoDB का लैंग्वेज आता है, Oracle में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, Access में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं. Different types of programming languages are there. But if you're talking about the programming language, so it is the way where we can draft the program, and with the help of that program we are going to talk with the computer. That is the programming language. For example, if you are going to learn the C language, अगर आपको C language पढ़ना है, C is the language. आप बोलते हो मराठी is the language, English is the language, Japanese is the language, German is the language. These are different types of language. अभी मराठी का मैं यूज करूंगा कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश का मैं यूज करूंगा कम्युनिकेशन के लिए, मराठी हिंदी का यूज करूंगा, इंग्लिश हिंदी का यूज करूंगा कम्युनिकेशन के लिए. सपोज मुझे जर्मन आती है तो मैं जर्मन का यूज करूंगा कम्युनिकेशन के लिए. वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है.
जो लैंग्वेज का यूज करके हम लोग हमारे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। दैट मीन्स सपोज मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, सपोज इफ आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द नंबर दैट इज इवन और ऑड। सपोज मैंने आपको एक टास्क दे दिया, टास्क क्या दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम का एम क्या है, आपको एक प्रोग्राम में क्या लिखना है कि आप जो एक नंबर दोगे कंप्यूटर के पास, जो एक नंबर आप भेजोगे, दैट नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, दैट मीन्स आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हो, प्रोग्राम लिखने के बाद वो आप अपने सिस्टम को भेजोगे, सिस्टम उसको कंपाइल करेगा यानी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा। अगर आपका पूरा एरर फ्री प्रोग्राम है तो आप एग्जीक्यूट करोगे, अगर उसमें कुछ एरर है तो रुक जाएगा, आपको लिस्ट ऑफ एरर बताएगा, लिस्ट ऑफ एरर को आपको निकालना पड़ेगा। इफ वंस यू रिमूव ऑल द एरर, एक बार आपके एरर सारे रिमूव हो गए तो आप अभी क्या करोगे, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। दैट मीन्स आप कम्युनिकेशन किसके साथ कर रहे हो, आपके कंप्यूटर के साथ कर रहे हो, और आपने खुद ने एक प्रोग्राम लिखा है। दैट मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी क्या है, इट्स अ मीडिया। दैट मीन्स सपोज सी का सॉफ्टवेयर है, इट इज अ मीडिया, इट इज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। एक हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारे कंप्यूटर को बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी सॉफ्टवेयर कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, इसको आप समझो, मैंने क्या लिखा है, इसको आप एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद आप मुझे इसका रिजल्ट दे। ठीक है, there are two different things existing with the programming. The very first thing is you are going to writing the program, that means जो बंदा प्रोग्राम लिख रहा है, जो व्यक्ति प्रोग्राम लिख रहा है, जो पर्सन प्रोग्राम लिख रहा है, उसको इनपुट भी पता है और आउटपुट भी पता है। बट ऑब्वियस प्रोग्राम कौन लिख रहा है, हम लोग लिख रहे हैं। तो मुझे पता है कि प्रोग्राम अगर मैं लिख रहा हूं तो ये प्रोग्राम में मैं क्या इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों आपके पास है। आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम किस लिए लिख रहा है ये भी आपको पता है, प्रोग्राम लिखने के बाद आपको क्या मिलने वाला है ये भी आपको पता है। ठीक है, दैट मीन्स एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा एक मोबाइल का व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप किया, ठीक है, आपने सेंड कर दिया, दैट मीन्स वो आगे वाले को क्या हो जाएगा, वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वाले को रिसीव हुआ है नहीं, आप कैसे चेक करते हो, आपको एक नोटिफिकेशन दिखता है। ठीक है, अगर वो सिंगल टिक है तो उसने रीड ने उसको डिलीवर नहीं हुआ है, डबल टिक है तो डिलीवर हुआ है, डबल टिक विद अ ब्लू कलर है तो उसने रीड भी किया है, ऐसा आप मानते हो। यानी आपको इनपुट भी पता है और आउटपुट भी पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, मैंने बोला कि चेक द नंबर, चेक एनी नंबर, एक सपोज मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया आपको 10, और मैंने बोला ये 10 को चेक करो आप वेदर दैट नंबर इज इवन और ऑड, ये नंबर इवन है या ऑड है। इवन ऑड का मतलब क्या होता है कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो नंबर इवन है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ऑड नंबर है। ठीक है, अगर मैंने एक ऐसे प्रोग्राम लिखा और मैंने मेरे सिस्टम को बोला यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम लिखा तो मुझे प्रोग्राम का आंसर भी पता है, प्रोग्राम में क्या इनपुट देना है ये भी पता है। मैंने लिखा कि एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड, ये आपको मैंने टास्क दे दिया कि आपको जो दिया हुआ नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो आपको पता है कि आपको एक नंबर प्रोवाइड करना है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि 10 बोला तो 10 ही, आप 15, 16, 20, 200 कुछ भी नंबर भेज सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने जो नंबर भेजा हुआ है आपका सिस्टम क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करेगा और बताएगा कि आपने वो नंबर भेजा हुआ इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इसके लिए आपने प्रोग्राम लिखा, दैट मींस यू ऑलरेडी नो द एग्जीक्यूशन, यू ऑलरेडी नो द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट, दोनों चीज आपको पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है और इनपुट क्या आपको भेजना है, दोनों चीज आपको पता है। दैट मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है कि इसमें हम लोग जो भी टास्क है, ठीक है, हम लोग लैंग्वेज का मतलब कि हम लोग कंप्यूटर के साथ एक पर्टिकुलर सी सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन मोर थिंग बताता हूँ कि आप टिकटॉक का यूज करते थे, अभी तक अभी बैन हो गया तो अभी कोई यूज नहीं करता, आप टिकटॉक यूज करते हो। ठीक है, आफ्टर दैट आप कोई वीडियो ऐप यूज करते हो वीडियो ऐप यूज, आप वीडियो मेकिंग करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके गैलरी से आपने 10 फोटो सिलेक्ट कर दिए, फिर आप क्या करते हो 10 फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपके जो ऐप है उसको दे देते हो, फिर ऐप आपको पूछता है कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ एडिटिंग करना है, आप बताते हो ये करना है, फ्रेम लगाना है कि नहीं लगाना है, सॉन्ग उसमें एडिट करना है कि नहीं करना है, तो आप ये बताते हो।
ये सब बताने के बाद वो क्या करता है आपका एप्लीकेशन, उसमें वो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करता है, ठीक है। फॉलो करने के बाद वो आपका वीडियो रीड करेगा, वीडियो बनाएगा और आपको वापस भेज देगा, है ना। बनाने के बाद आपको मिलेगा सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं यार ये गलत है, ठीक है, ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो फिर से आप क्या करते हो, रीचेंज करते हो। तो ये जो आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो विद हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। आप एप्लीकेशन के थ्रू आपके जो आपका जो मोबाइल है उसमें क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। सेम थिंग हैपन विद कंप्यूटर विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इट इज अ मेथड और इट इज द वे थ्रू विच वी आर गोइंग टू communicate with the computer in the programming format, in the programming forms. प्रोग्राम के फॉर्म पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं। जैसे मैंने अगर कुछ बोला तो आप लोग सुन रहे हो, आपने कुछ बोला तो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मीडियम कौन सा हमारे पास, सपोज मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या फिर हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मीडियम इज इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। वैसे ही अगर मैं सी प्रोग्रामिंग बोलता हूँ, तो सी प्रोग्रामिंग का मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने मेरे लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। इसको मुझे कंप्यूटर के पास भेजना है, तो मैं इसको कंपाइल करूंगा, तो ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में हो जाएगा। फिर कंप्यूटर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वापस वो कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर क्या करेगा, उसको मेरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करके देगा, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या होगा कि हम लोग एक सी जो प्रोग्रामिंग है, इट इज अ मीडियम थ्रू विच वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड आवरसेल्फ विद द प्रोग्राम्स ओनली, ठीक है। हम लोग बात करके नहीं बताएंगे, हम लोग प्रोग्राम्स लिख के बताएंगे, हाँ ये मेरा प्रोग्राम है, ये आप एग्जीक्यूट करके दो, इसका आंसर क्या आता है ये आप मुझे बताओ। दैट मीन्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी क्या होता है, ठीक है, योर सी लैंग्वेज, योर फॉक्सट्रो लैंग्वेज, ठीक है। आपका जो सी है, आपका जो फॉक्सट्रो है, ये कौन सी लैंग्वेज आती है, सी लैंग्वेज में आता है। वेराज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, जो आपकी लेटेस्ट लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, आपकी जावा के एडवांसेस लैंग्वेजेस है, ये सारे किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है। यानी जब 1972 में जब आपका सी इन्वेंट किया गया था, ठीक है, द सी लैंग्वेज इज इन्वेंटेड इन द 1972 बाय डेनिस रिची एट द एटीएनटी लैब। डेनिस रिची नाम का एक साइंटिस्ट है, डेनिस रिची, जिसने 1972 में एटीएनटी एक लैब का नाम है, वहां पे उसने सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था, ठीक है। जब पहले लैंग्वेज इन्वेंट की गई थी, तो ऑल दीज आर लैंग्वेज कम्स अंडर द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये लैंग्वेज कौन सी है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर सी लैंग्वेज में कुछ ड्रॉबैक्स पता चले, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट किया गया, कुछ एक नया लैंग्वेज डेवलप हुआ, सी प्लस प्लस, जावा, और उसके नए वर्जन बनते गए, ठीक है। तो सी के बाद जो भी लैंग्वेजेस आई वो सारी लैंग्वेजेस किस में आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर आती है, ओओपी जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑलरेडी सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन से है, सी प्लस प्लस है, जावा है, आपका पीएचपी है, जिसमें जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बेस्ड रहती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी प्रोसीजरल ओरिएंटेड में जो प्रोग्राम होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आपका प्रोग्राम है तो उसमें स्मॉल स्मॉल प्रोसीजर होती है, स्मॉल स्मॉल फंक्शंस होते हैं। दैट मींस योर होल प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस है प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। प्रोसीजरल में क्या होता है कि आपका जो एक प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड होता है। दैट मींस इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रोसीजर, ठीक है। आपका एक बड़ा प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो एक सिंपल प्रोग्राम नहीं रहता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इट इज हैविंग द मल्टीपल प्रोग्राम्स, और मल्टीपल प्रोग्राम्स में मल्टीपल टास्क होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको बोला कि एक कैलकुलेटर बनाना है, उसका प्रोग्राम बनाइए यूजिंग सी, ठीक है। तो अभी कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड में क्या होगा, एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपका कैलसी में। ऐसा होता है कि जब प्लस भी कर रहे हो और इधर माइनस भी कर रहे हो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर अगर बनाना है तो मुझे प्लस के लिए एक छोटा सा फंक्शन बनाना पड़ेगा, माइनस के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा,
फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आपके लिए डिवीजन के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर ये पूरे इसका कंबाइन बना के जो प्रोग्राम बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रोग्राम बोलेंगे। यानी आपका जो मेन प्रोग्राम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एडिशन के लिए सेपरेट, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट, डिवीजन के लिए सेपरेट, सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट, अलग अलग प्रोग्राम बनाए और बाद में सिर्फ इसको क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो कंबाइन कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, whereas ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं व्हेनेवर यू आर गोइंग एट नेक्स्ट सेमेस्टर in 4th semester you are having the object oriented programming subject for it as a C++ and Java. ठीक है, तो C++ और Java ये दो जो सब्जेक्ट्स है, all these are comes under the object oriented programming. So object oriented programming is totally based on the object. इसमें हम लोग पहले क्लास बनाते हैं और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास का डेटा एक्सेस करते हैं। इट विल बी क्लियर व्हेन यू आर लर्निंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टिल आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी क्या होता है, जिसमें एक प्रोग्राम नंबर ऑफ प्रोसीजर में डिवाइड होता है। ठीक है, everybody got the point? ठीक है, so we'll stop here.